Starting with definition, and this is an old definition. I'll try to differentiate between the present one and the old one. इसमें अगर आप देखें तो what they are saying, they're saying about heart failure as a clinical syndrome. So previously it was thought of a constellation of signs and symptoms, and it is secondary to any structural or functional defect. If you see here, clinical syndrome that can result from any structural or functional cardiac disorder that impairs the ability of ventricle to fill with or eject blood. And this definition was of 2001. Even at that time, we were considering heart failure not just an inability of ejection. It has something to do with filling as well. But in this definition, heart failure was considered syndrome, meaning by you have to have some signs, symptoms to diagnose heart failure. But this is the latest one. It's a bit comprehensive, but cover everything about heart failure. And how is it different from the previous one? You see, there is no description of any syndrome or symptoms. What this definition is translating, heart failure can be defined as an abnormality of cardiac structure or function, leading to failure of the heart to deliver oxygen at a rate commensurate with requirements of the metabolizing tissue, despite normal filling pressure or only at the expense of increased filling pressure. अब सिम्टम विम्टम का कोई जिक्र नहीं है. एक ऐसा स्टेट वेयर हार्ट इज अनेबल टू really provide adequate nutrition needed for the tissue, or the heart is doing it at the expense of increased filling pressure. And why is it important? This definition translate into classification, management, and a lot of things. So that's first, you need to have this concept that heart failure is now not related to symptom. It's all heart's abnormality in a way, either structural or functional. और वो कैसे आप आगे करेंगे, वो अब जब हम टर्मिनोलॉजीज डिस्क्राइब करते हैं हार्ट फेलियर की तो आपको आइडिया होना शुरू होगा. अच्छा, नाउ द टर्मिनोलॉजीज आर मेंशन अकॉर्डिंग टू डिफरेंट क्राइटेरियाज: ejection fraction, symptoms, heart failure progression. A lot of things are involved, and these are important to identify in your patient. Just a EF 35% is not heart failure, and it has impact on management. Sorry. अब stage A क्या है? At risk of heart failure. Every patient who's having risk factors, और risk factors की भी multiple पूरा criteria है कि किस किस तरह के, even genetic variant of cardiomyopathy is stage A heart failure. अभी कोई गड़बड़ शुरू नहीं हुई है, लेकिन अंदर कुछ ना कुछ उम्मीद है कि ये पेशेंट को गड़बड़ हो जाए. तो कितनी सारी चीजें इस स्टेज ए में ही आ जाएंगी. देन स्टेज बी, नाउ इट्स स्लाइटली बियॉन्ड रिस्क फैक्टर दैट देयर आर सम स्ट्रक्चरल और इवन फंक्शनल. कि अब इसमें इन्होंने बायोकेमिस्ट्री भी डाल दी है कि रेज्ड नाइट्रोयूरेटिक पेप्टाइड, अभी आपको कुछ भी नहीं इको पे मिला है, लेकिन नाइट्रोयूरेटिक पेप्टाइड परसिस्टेंटली रेज रह रहे हैं. दैट मीन्स देयर इज समथिंग रॉन्ग विद फिलिंग्स. तो ये भी इसका पार्ट बन गया है. रेज ट्रोपोनिन, कोई इंजरी आ रही है जिसने अभी कोई क्लियर कट स्ट्रक्चरल या फंक्शनल डिफेक्ट दिखाया नहीं है, बट दिस इज स्टेज बी. सी इज सिम्टम्स. एक बार अलामतें आ गई तो दिस इज सी. एंड देन सी इज फर्दर अकॉर्डिंग टू इजेक्शन फ्रैक्शन, कि वो रेफ है, हेफ रेफ है, हेफ पेफ है, मार्जिनली रिड्यूस्ड है, और फिर उसकी हम बातें करते हैं. एंड स्टेज डी इज एंड स्टेज हार्ट फेलियर. बट दीज ए बी सी डी आर important because you want to identify your patient early. यहाँ पे मालूम किया तो मोर्टेलिटी 1 ईयर की 25-30% दोनों, हेफ में भी एफ में भी आफ्टर सिम्टम, और 5 साल की तकरीबन 60-65% हो जाती है मोर्टेलिटी.
So if you pick your patient here, then you are left with very few things to offer, क्योंकि मोर्टेलिटी इतनी ज़्यादा है सिम्टोमेटिक हार्ट फेलियर पेशेंट की, और यहाँ तो बिल्कुल कैंसर वाली मोर्टेलिटी, वो मॉर्बिडिटी मोर्टेलिटी है. तो इसलिए these stages are important. That consider your diabetic and hypertensive patient not as hypertension. Stage A, heart failure. Then ट्रिजेक्ट्री इन सी, सिम्टम्स वाले जो ग्रुप आ गया, उसमें किस किस तरह की ट्रिजेक्ट्रीज हैं. न्यू ऑनसेट, पहली दफा अचानक हो गया. रेजोल्यूशन, हुआ था अभी ठीक है, ओपीडी में आपके पास आ रहे हैं, बट इज टोटली एसिम्प्टोमेटिक. दिस इज नॉट स्टेबल हार्ट फेलियर. स्टेबल हार्ट फेलियर के लफ्ज को डिक्शनरी से निकाल दें. रेजोल्यूशन और इन रिमिशन, रिलैप्स नहीं हुए, अब रिमिशन में चला गया, बट स्टिल दिस इज अ पेशेंट ऑफ हार्ट फेलियर. persistent heart failure, in spite of doing treatment, patient is remaining in symptoms. And lastly, for worsening, सब कुछ कर रहे हैं लेकिन downhill, deteriorate हो रहा है. And why this trajectory is important? That guide you towards different treatments. कि जिस पे हैं आप उसी पे रहें या किसी और कुछ नया करना है. And that's why it's very important to know your patient's symptoms trajectory, कि क्या status है उसका. फिर हम आते हैं ejection fraction based classification, and that is for certainly patients with symptoms. और वो क्या क्या है? HFpEF, HFrEF, marginally reduced EF और HFpEF. HFpEF पे मैंने दायरा इसलिए लगाया कि ये दोनों तो बड़े आसान है डायग्नोज करना, because you have objective evidence, you have a ejection fraction at this level, that's why they are HFrEF and they are marginally reduced EF. लेकिन मसला कब आएगा? जब वो ejection fraction नॉर्मल है. So when to say it's HFpEF? क्योंकि बहुत सारे आपके एकोकार्डियोग्राफिक क्राइटेरियाज जो HFpEF के होते हैं वो ओल्ड एज में नॉर्मल भी होते हैं. नहीं, नॉर्मल भी डायस्टोलिक डिसफंक्शन हो जाता है पेशेंट को ओल्ड एज में. So that means you need to know something more than that to label someone HFpEF. और वो क्या चीजें हैं कि फर्स्ट इज प्री टेस्ट प्रोबेबिलिटी. एको करने जा रहे हैं तो उससे पहले आप किस बुनियाद पे उसको HFpEF डायग्नोज करने जा रहे हैं, उसमें आपको ये चीजें देखनी होंगी. Symptoms and signs of heart failure in patient. His ejection fraction is above 50% and objective evidence of structural or functional abnormality. जिसमें अभी हमने बात की थी कि इवन NT-proBNP का रेज होना भी आपको गाइड करेगा विद दो सिम्टम्स, बिकॉज सिम्टम्स ऑफ हार्ट फेलियर SOB has a wide spectrum of etiology behind it. How to label that this is HFpEF? EF तो 50% है, उसके साथ कोई ना कोई कोरिलेशन ऐसी मिले जो ये गाइड करे कि पेशेंट को स्ट्रक्चरल या फंक्शनल कोई ना कोई एबनॉर्मलिटी के क्लू मिल रहे हैं. इसीलिए हमने डेफिनेशन पीछे इसकी कितनी कॉम्प्रिहेंसिव बना दी है कि ये सारे एविडेंस के साथ कुछ हो तो वो हार्ट फेलियर कहलाएगा. फिर इसके बाद एको में क्या क्या कुछ है. Now these are the whole assessment, echo, biochemistry and other, and finally conclude with symptom and all these things together to diagnose your patient with HFpEF. हम मैनेजमेंट HFpEF की डिस्कस नहीं करेंगे, सिर्फ डायग्नोसिस में, क्योंकि ये चीज़ें इंपॉर्टेंट है. LV मास इंडेक्स, रिलेटिव वॉल थिकनेस, LA वॉल्यूम इंडेक्स, और इनकी वैल्यूज़ हैं. साइनस में क्या है, AF है तो क्या है, उसकी बुनियाद पे आप फैसला करेंगे कि इस पेशेंट को प्रॉब्लम है या नहीं है इन रिलेशन टू फिलिंग स्टेटस, और HFpEF वाली लेबल आप डालेंगे या नहीं डालेंगे. NT-proBNP का रेस होना, साइनस रिदम में कितना, AF में कितना, BNP लेवल्स कितने, सिस्टोलिक प्रेशर PA और TR वेलोसिटी. तो इन तमाम चीज़ों को कंक्लूड करके विद सिम्टम्स एंड एविडेंस ऑफ स्ट्रक्चर, वो NT-proBNP की हमने बात कर ली, then you came to a conclusion that your patient may have diastolic dysfunction. Is a misnomer. It's not used right now for HFpEF. ये निकाल दें. एक फीचर हो सकता है diastolic dysfunction HFpEF का, लेकिन diastolic dysfunction होना is not HFpEF. That can be a part of old age patient, obesity में, और किसी वजह से भी वो चीज़ें ऐसी फीचर्स मिल सकते हैं जो नॉर्मल हो उस पर्टिकुलर पेशेंट में. तो HFpEF के लिए ये तमाम चीज़ें आपको बनानी पड़ेंगी. अच्छा, एक नई चीज टू क्लास और आ गई है,
दैट इज HEF-IMPEF। वो क्या है? वो लोग जो इंप्रूव हो गए, once they have deteriorated to LV less than 40% and now they are above 40%। क्यों इंपॉर्टेंट है? ये लोग, इन लोगों को भी अब उसी तरह ट्रीट करना है जैसे हार्ट फेलियर को ट्रीट किया जाता है। ये वो वाले हार्ट फेलियर हैं जो रिमिशन में वापस आ गए, बट दे स्टिल हैव अ चांस ऑफ डेवलपिंग अगेन द हार्ट फेलियर। आप कार्डियोमायोपैथीज में देखते, मायोकार्डाइटिस में देखते होंगे, पेरिपार्टम CMPs में दे डू इम्प्रूव। तो ये वो वाली ग्रुप होता है। अच्छा, अब हम देखें कि इस पूरी सिनेरियो में ABCD, तो ये सारी चीजें आ सकती हैं वन वे और द अदर, बिकॉज दे आर ऑल वन वे और द अदर लीड टू फंक्शनल और स्ट्रक्चरल एबनॉर्मैलिटी इन द हार्ट। ये सारी चीजें, तो अल्टीमेटली अगर हम ये कहें कि हर मरीज किसी ना किसी तौर पे इस हार्ट फेलियर की चौरंगी पे ही पहुंचेगा, कहीं ना कहीं से घूम घाम के, और आप स्क्रीन करें, यू विल फाउंड 80-90% of your patient are of heart failure starting from stage A to C और D। अब ये है कि आप उनको कितनी जल्दी आइडेंटिफाई और लेबल करके और उसके मुताबिक ट्रीट करना शुरू कर देते हैं। थोड़ा सा पैथोफिजियोलॉजी, दैट्स व्हाई वी आर कीपिंग देम इन ABCD। ये जो भी इटियोलॉजीज हमने बयान की, कॉमन इटियोलॉजीज, वैसे तो इसमें हर चीज आ जाएगी विच इज एट स्टेज A। स्टेज A हार्ट फेलियर हम क्यों कह रहे हैं? क्योंकि बहुत सी मायोकार्डियल डिसफंक्शन, स्ट्रक्चरल और फंक्शनल, वो इनमें शुरू हो चुका होता है, जो हमें उस वक्त नजर नहीं आ रहा होता है। वो हम अब क्लोजली, पहले तो हम सिर्फ एको से, EF से पिक करते थे, 35-40% से कम को हम हार्ट फेलियर कहते थे, बट अब हमारे पास NT-proBNP, डायस्टोलिक डिसफंक्शन असेसमेंट, LA वॉल्यूम और ये तमाम चीजें आ गई हैं, जिससे हम अब बहुत अर्ली पिक करने लग गए हैं। तो एज्यूम हम ये करते हैं कि इन इटियोलॉजीज के साथ साथ कुछ ना कुछ गड़बड़ शुरू हो गई है, दैट अल्टीमेटली विल लीड टू पैथोलॉजिकल। ये वो स्टेज होगा जब आपको नजर आनी शुरू होगी चीज, फिर ये फर्दर डिटेरेट करेगी तो इजेक्शन फ्रैक्शन फिर HEF-REF में जाएगा। जबकि प्रेजेंटेशन में पल्मोनरी एडेमा के जो पेशेंट्स आते हैं उसमें 50% HEF-PEF होते हैं। तो इसका मतलब है कि हम इनको, जिनको पहले हार्ट फेलियर लेबल ही नहीं करते थे, वो इतना बड़ा ग्रुप इस एल्गोरिदम के इस पार्ट में ही होता था, जिसको हम एग्रेसिवली मैनेज नहीं करते थे और नहीं करते हैं अभी भी, और इवन इनको भी नहीं करते, क्योंकि ये बहुत जल्दी यहाँ से यहाँ या दरमियान वाले में आ जाते हैं, एंड स्टेज में। आप कई देखेंगे मरीज वो हर हफ्ते में 2 मरतबा 3 मरतबा महीने में दाखिल हो रहे हैं। क्यों? विद इन 3-4-5 years of their MI, because we haven't properly treated them। तो ये बड़ा इंपॉर्टेंट है कि आप यहीं से चीजों को पिक कर लें, ऑप्टिमाइज ट्रीटमेंट रहे, ताकि ये जो भी प्रॉब्लम्स आ रही हैं, ये इनकी फर्दर डिटेरेशन या डाउनहिल शुड बी वेरी स्लो, और वो उस वक्त आए जब वो बिल्कुल एंड स्टेज लाइफ के 70-80 साल गुजार चुका हो आपने। सिम्टम्स वी ऑल नो, दैट्स व्हाई आई एम स्किपिंग। साइंस वी ऑल नो, बेसिक इन्वेस्टिगेशन, और इसमें एक चीज़ हम डिस्कस करते हैं कि ये सिर्फ असेसमेंट इसलिए नहीं हो रही होती है कि हम हार्ट फेलियर को डायग्नोज करने जा रहे हैं। ये मैं आपको आता हूँ कि ये भी एल्गोरिदम प्रीवियस ESC गाइडलाइन का है। सस्पेक्टेड ऑफ हार्ट फेलियर, assessment of probability of heart failure, along with it we'll see क्या क्या आपको पूछना है हिस्ट्री में। ये सिर्फ वो हार्ट फेलियर की हिस्ट्री नहीं होगी, इटियोलॉजी और एग्रेवेटर्स की भी हिस्ट्री होगी सारी। देन एग्जामिनेशन विद सेम ऑब्जेक्टिव, और फिर ECG। ये 3 स्टेप तो पहले हैं ही हैं हर उस पेशेंट में वेयर यू आर सस्पेक्टिंग हार्ट फेलियर। कॉम्प्रिहेंसिव हिस्ट्री, एग्जामिनेशन एंड some basic investigations, और अभी उसमें मैं और भी ऐड करके आपको बताऊंगा जब मैनेजमेंट आएगी। एक और चीज इंपॉर्टेंट होती है जब एक्यूटली कोई पेशेंट आ रहा है, इज दिस हार्ट फेलियर, इज दिस देयर अ प्रेसिपिटेंट, इज द हार्ट फेलियर इमीडिएटली लाइफ थ्रेटनिंग। ये जज करना भी बड़ा इंपॉर्टेंट है मैनेजमेंट स्ट्रेटजीज पॉइंट ऑफ व्यू से। तो ये 3 चीजों का आपने फौरन जवाब देना, और हम चूंकि इमरजेंसीज बहुत ज्यादा डील करते हैं, so we should be very quick in defining, is this heart failure, is there a precipitant, or is this a life threatening or not। इसको जल्दी पिक करना बड़ा इंपॉर्टेंट है एक्यूट स्टेजेस में। क्रॉनिक की तो हम बात करते हैं, तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है।
अब जो ऑब्जेक्टिव ऑफ एवोल्यूशन, अभी हम मैनेजमेंट पे नहीं आ रहे क्योंकि ये वाला पार्ट अभी तक हम असेसमेंट पे चल रहे हैं. Diagnosing heart failure, etiology, aggravator, and in chronic patients, try to stage your patient as well. At risk of, pre-symptomatic और end stage. ये चार आपने लेबल जरूर देना है अपने मरीज को कि आप कौन सा मरीज डील कर रहे हैं when you're dealing. और फिर अब सिम्टम ट्रेजेक्टरीज भी आ गई हैं तो वो भी इंपॉर्टेंट है. इम्प्रूव, डिटेरेटिंग, परसिस्टेंट, ये सारी चीजें. अब यहाँ पे देखें ये 3 स्टेप अभी हमने जिक्र किए. इसके बाद अगला स्टेप क्या होता है, ये हम कॉमनली नहीं करते. आइडियली वी शुड बी डूइंग एंटी प्रो बीएनपी. उसके बाद ये नो हो जाता है ना तो यू हैव एक्सक्लूडेड. अगर यस है तो एकोकार्डियोग्राफी. और फिर सिर्फ हार्ट फेलियर तक महदूद नहीं रहना, इटियोलॉजी एंड अप्रोप्रिएट ट्रीटमेंट. अभी हम देख कर आ रहे हैं कि इटियोलॉजी इस्केमिक है ही नहीं और एंटीप्लेटेड भी चल रही थी, स्टैटिन भी चल रही थी. क्यों? यू थिंक दैट योर जर्नी एंड्स हियर, बस एको हुआ हार्ट फेलियर किताब बंद. नो, यू हैव टू जज इटियोलॉजी एज क्यों, व्हाई इज दिस पेशेंट हैविंग हार्ट फेलियर. ये भी इंपॉर्टेंट है. और फिर ये तो वो वाला पार्ट हो गया कि अनलाइकली है, तो अनलाइकली में भी फर्ज ये भी बनता है कंसिडर, अगर नहीं है तो क्या है, मरीज तो अस्पताल में है ना, सो कुछ ना कुछ तो हो रहा है. तो क्या हो रहा है वो एक्चुअली हम इसके साथ ही ट्रीट कर रहे होते हैं. अभी मैं देख के आ रहा हूँ एजमा ट्रीट हो रहे हैं सारे पेशेंट्स बिकॉज यू आर अनक्लियर अबाउट के ब्रोंकोस्पेज्म है या नहीं है. यू शुड बी कॉन्फिडेंट एनफ इन योर डायग्नोसिस. इज दिस हार्ट फेलियर और नॉट? इफ नॉट, व्हाट इज द अल्टरनेटिव? क्या और हो रहा है इसको? या कॉन्कॉमिटेंट है तो अलग बात है, लेकिन ये नहीं हो सकता एक ही मरीज को बेसिक्स भी मिल रहा है और नेबुलाइज भी हो रहा है. इसका मतलब है यू आर अनक्लियर अबाउट डायग्नोसिस. इस एल्गोरिदम को आपने फॉलो ही नहीं किया कि ना हार्ट फेलियर डायग्नोज किया ना अल्टरनेटिव क्लियरली डायग्नोज की पेशेंट की. ये हमारी कन्वेंशनल मैनेजमेंट पे. अब हम मैनेजमेंट पे आ रहे हैं और मैनेजमेंट पे हम सिर्फ क्लास 1 चीजें डिस्कस करेंगे. अभी और डिस्कस चीजों में हम नहीं जा रहे, और सिर्फ मेडिकल ट्रीटमेंट उनको किस तरह इनकॉर्पोरेट करना है. नाउ वी हैव टू ऑफर दीज 4 ऑल टुगेदर. लेकिन मसला क्या है, अभी हम थोड़ा सा गाइडलाइन में आपको दिखा देते हैं. सारी अब कंसेंसस हैं, ESCO, AHA, कैनेडियन हो, कोई भी आप ले लें, इस पे सब वो हैं एग्री कि ऑल 4 along with loop diuretic according to the patient's volume status. ये तो अभी हम यहीं तक रहेंगे, इससे आगे नहीं जा रहे. अब इन चीजों का मसला क्या है, ये भी वही चीज में बात कर रही है कि वो सारी चीजें वो फिर नहीं हो तो क्या करना है, वो आगे की बात है. Do we start them all at once or do we prioritize some agents over the other? ये सबसे बड़ा क्वेश्चन जो अभी हम देख रहे हैं. डिस्चार्ज कार्ड में पेशेंट का प्रेशर 90-70 है, इज ऑल ऑन ऑल 4 मेडिकेशंस, और वो अगले दिन आता है गिरा हुआ. कभी कभार तो मरीज नहीं आता, अटेंडेंट आता है कि बस यहाँ से गए थे, दूसरे दिन अस्पताल वो बाथरूम में गिर गए और प्रेशर कहते हैं 80-60 आ रहे हैं. सो यू हैव टू प्रायोरिटाइज which patient needs which medication. ये बड़ा इंपॉर्टेंट है, and that we are going to discuss translating guideline into practice. पिछला प्रीएम्बल मैंने इसलिए दिया कि हार्ट फेलियर को सिर्फ EF 35% से नहीं नापना है. हार्ट फेलियर नीड a comprehensive assessment to answer all those things in terms of EF, in terms of clinical status, in terms of disease trajectory, improving, deteriorating, worsening, और फिर etiology and aggravators. These 3 things are so important. Identifying your patient's exact status in relation to heart failure, its etiology, what is behind, and what are the aggravator which are destabilizing your patient, which was previously stable. अब ये आपको पेशेंट प्रोफाइल इंपॉर्टेंट है. आज हम राउंड में भी बात कर रहे थे कि अब आप जब आपने पेशेंट को स्टेबल कर लिया, euvolemic कर लिया, these are the things you have to look for. What is your patient's heart rate? What is his rhythm? What is his blood pressure? CKD और hyperkalemia. ये 4 चीजों के बगैर आप दवाइयां डिसाइड नहीं कर सकते. और वो बेसलाइन की कि जिस वक्त आप दवाइयां देने जा रहे हैं वो वाला स्टेटस नहीं जब वो प्रेजेंट हुआ था. That means clinical assessment, ECG and some basic biochemistry is important
टू डिसाइड और टेलर मेड योर मेडिकेशन स्ट्रेटजी फॉर योर पेशेंट। इसमें देखें आपके पास किस किस्म के पेशेंट हो सकते हैं। हार्ट रेट लेस देन 60, 60 to 70, ग्रेटर देन 70। ये तो एक वेरिएबल बनाए हैं, इसमें बहुत सी वेरिएबिलिटीज हो सकती हैं, लेकिन रेट से एक आपको आर्बिट्रेटरी 3 में हमने क्लासिफाई। सिमिलरली ब्लड प्रेशर लेस देन 90/60, अबव 90/60, ग्रेटर देन 140/90। तीनों की अलग अलग तरीके से मैनेजमेंट स्ट्रेटजीज बनेंगी। सिमिलरली एएफ है या नहीं है, और एएफ ट्रांजिएंट भी आया या नहीं, ये भी इंपॉर्टेंट है। एन सीकेडी और हाइपरकैलेमिया के कोई एविडेंस मौजूद है या बिल्कुल नहीं है, पेशेंट बिल्कुल नॉर्मल रीनल फंक्शन है और कोई पोटेशियम के इश्यूज नहीं है। कंबाइनिंग वेरियस, किसी का हार्ट रेट कम होगा, प्रेशर हाई होगा, किसी का हार्ट रेट ज्यादा होगा, प्रेशर कम होगा, इस तरीके से ये सारी चीजें होंगी उसमें। इसका मतलब है कि आपको पहले अपने बैंक देखना होता है कि आपके पास क्या क्या है जिसपे आप खेल सकते हैं चीजें, यानी आपके अपने बैंक में क्या क्या है। हार्ट फेलियर स्पेंडिंग फंक्शन एंड इन्वेस्टर फ्रेमवर्क फॉर सीक्वेंसिंग एंड इंटेंसिफाइंग ट्रीटमेंट। आपके पास ब्लड प्रेशर कितना है, आपके पास हार्ट रेट कितना मौजूद है, आपके पास रीनल फंक्शन का स्टेटस क्या है, पोटेशियम का क्या स्टेटस है, कॉस्ट क्या है, पेशेंट कितना बियर कर सकता है, क्योंकि कुछ दवाइयां ऐसी हैं जिनकी कॉस्ट बहुत ज्यादा है, वो हो सकता है ले ही ना। सिमिलरली कॉम्प्लेक्सिटी, आपस में कोई इंटरेक्शंस ड्रग के इन टर्म्स, और ये फिर उन तमाम चीजों की है कि देखें डायरेटिक का क्या क्या है, डेथ, हॉस्पिटलाइजेशन, ब्लड प्रेशर, हार्ट रेट, ईजीएफआर, पोटेशियम कॉस्ट, ये सब आपको पता है। इसमें कॉस्ट के इशू किन किन के साथ हैं, आर्नी और SGLT2 के साथ, ठीक है। सिमिलरली कुछ के इश्यूज प्रेशर के साथ हैं, कुछ के हार्ट रेट के साथ हैं, कुछ के पोटेशियम के साथ हैं, कुछ के क्रेटिनिन के साथ हैं। तो ये तमाम चीजें आपने अपने पेशेंट में जज करनी है, आपके पास क्या अवेलेबल है और कितना अवेलेबल है, जिसकी बुनियाद पे आप किस दवा को कितना रख सकते हैं, किस दवा को दे ही नहीं सकते, किस दवा को बढ़ा सकते हैं, किस दवा को घटा सकते हैं। एंड दिस इज जस्ट प्योरली ऑन द पेशेंट बेस। अभी मैं इसमें उन इटियोलॉजी और एग्रीवेटर की बात नहीं कर रहा हूं, दैट फर्दर कॉम्प्लेक्स द सिचुएशन। आपको ये भी देखना है कि इसके अंदर एग्रीवेटर्स क्या हैं, रिदम्स के डिसऑर्डर हैं, एक्यूट स्कीमिया चल रहा है, और कोई और इशू है जो कांस्टेंट एग्रीवेटर बन रहा है, या कोई ऐसी एडिशनल कोमॉर्बिड है जिसके साथ साथ हमें दवा का ख्याल रखना है, वो भी इंपॉर्टेंट है। एंड देयर आर सम ड्रग्स व्हिच नीड टू बी ऐड और सब्सट्रैक्ट अकॉर्डिंग टू द कोमॉर्बिडिटीज। सो इट्स नॉट दैट सिंपल कि बस EF 35% वो 4 दवाइयां और ठक आपने चारों की चारों पेशेंट को लिख दी। नो, इट्स ऑल हार्ट फेलियर ट्रीटमेंट बेसिकली रियली डिपेंड्स ऑन योर असेसमेंट, और ये असेसमेंट इवन डे बाय डे चेंज होती है, वीक बाय वीक चेंज होती है, मंथ बाय मंथ चेंज होती है, और स्ट्रेटजी डिफरेंट हो जाती है कि अब मुझे कौन सी दवा ज्यादा देनी है, कौन सी कम देनी है, कौन सी ऊपर करनी है, कौन सी नीचे करनी है। तब आप सही मानों में पेशेंट को दोनों तरफ का बेनिफिट, लॉन्ग टर्म मोबिलिटी, मोर्टेलिटी एज वेल एज सिम्टोमेटिक बेनिफिट दे पाते हैं, अदरवाइज यू कांट। इट्स नॉट अ स्ट्रेट फॉरवर्ड 2+2 4। अब हम केसेस पे आते हैं जिसमें थोड़ा सा आपको याद करना पड़ेगा कि हमने क्या क्या डिस्कस किया, और फिर जवाब देना पड़ेगा। अगर वो दूसरा माइक तुम ऑन करके वो रख लो, जो भी जवाब दे तो उसको हम उसमें वो कर लेंगे। अच्छा, ये है एक 50 इयर्स डायबिटिक फीमेल विद ओकेजनल एक्सर्शनल शॉर्टनेस ऑफ ब्रेथ फॉर 1 month, ठीक है। इसमें क्या चीज आपको कोई फीचर लग रहा है ऐसा कि जिसको आपको हार्ट फेलियर समझना चाहिए? यस, सिम्टम्स हैं और डायबिटिक है और सिम्टम्स ऑफ SOB है, ठीक है। इसलिए ये सोचा जा सकता है कि इस पेशेंट को हार्ट फेलियर हो सकता है। सो व्हाट यू विल डू? जी, वो छोटा माइक भी, वो छोटा, हाँ, वो जो भी बात करे वो दे जी, कोई भी। मेरे ख्याल अगली रॉ जो है ना, नहीं अगली रॉ वालों को आंसर करने पड़ेंगे। वेरी गुड, ये अभी मुझे बायोमार्कर और ये चीजें आ गई नहीं, कन्वेंशनल। इसीलिए ये एल्गोरिथम बताया था कि स्टार्टिंग फ्रॉम दिस असेसमेंट ऑफ हार्ट फेलियर, पेशेंट सस्पेक्टेड ऑफ हार्ट फेलियर, पूरी हिस्ट्री, एग्जामिनेशन, ECG, ये 3 पहले पार्ट हैं। वो कभी कभार एक्सक्लूड भी कर देंगे,
आपने किया एनीमिया 4 का, उसका हीमोग्लोबिन है, तो भाई एसओबी तो होगा ही होगा। अभी आप फोकस टनल विजन के साथ बस 10 एंटी प्रो बीएनपी करूंगा और ईएफ करूंगा बस, और कुछ नहीं करूंगा। यही सबसे बड़ी मुसीबत हमारे लिए बन गई है कि टनल विजन, बस अपनी चीज देखनी है, बाकी कुछ नहीं देखना। सो दीज ऑल थिंग्स, और इसमें आप यहां से इंक्लूड एक्सक्लूड करते जाएंगे कि क्या इज इट और एनी अल्टरनेटिव। अब क्या करना है, हिस्ट्री में देखें, ये तफसील हो गई, मैं इसको डिटेल में नहीं जा रहा। अब मैं आपको दे देता हूँ, along with diabetes she is hypertensive with history of an episode of sweating chest heaviness for few hours about 2 months back with normal examination. अब क्या हुआ? Very good, but what this information is giving you a clue. यानी कोई इवेंट लग रहा है, ये तो बड़ा आसान हो गया, ये आप पूछते ही नहीं है भाई इससे पहले कभी कोई तकलीफ, बेचारा अभी कह रही है कुछ नहीं है, ठीक है अगला चलो। अब आप जब जहन में होगा कि इस्केमिक एटियोलॉजी ढूंढनी है, डायबिटिक है, तो पूछें पिछले 1 महीने 2 महीने 6-8 महीने में कोई ऐसी तकलीफ तो नहीं है, कोई एडिशनल चीज। ये जब ये सवाल किया गया तो इसने बताया कि हाँ मुझे 2-3 महीने पहले कुछ ऐसा हुआ था कि सीने पे हैवीनेस आई थी और पसीने आ गए थे बहुत ज्यादा। नाउ यू आर सीइंग ईसीजी विद सम इंटेंशंस कि मुझे कुछ ढूंढना है ईसीजी में। जी, वेरी गुड। So now with history, with background, now you are getting clues to words. So this etiology भी जाहिर हो रही है, कुछ क्लू भी मिल रहे हैं। आइडली इसका एंटी प्रो बीएनपी होना चाहिए, जो हमारे यहाँ नहीं होता, तो नहीं हुआ था इसका, तो डायरेक्ट हमें एको पे ही जम। इसके बाद आपने क्या है, एंटी प्रो बीएनपी करना है ईसीजी के बाद, जो अभी हम नहीं कर सके। एको में इजेक्शन 35% विद ए काइनेटिक इंफीरो पोस्टीरियर वॉल। अब क्या करना है, अब यहां से मैनेजमेंट की कहानी शुरू होगी। जी, एनीवन? इसमें 2 चीजें हैं हमें, यानी मैनेजमेंट स्ट्रेटेजी इस ये भी है कि अभी फ्यूचर हमें किन मेडिकेशंस पे रखना है, तो वो सारी चीजें जो अभी हमने बेस बताई थी। दूसरा ये भी देखना है क्योंकि अब हमें एक इटियोलॉजी भी आइडेंटिफाई हो रही है, तो उस इटियोलॉजी की मैनेजमेंट के साथ साथ उसकी फर्दर प्लानिंग, इजंट इट? एक यंग फीमेल में इस्केमिक इवेंट होके गुजरा है, सो यू नीड समथिंग विद दैट एज वेल। एंटीप्लेटलेट, स्टैटिन, बाकी चीजें किस पे मुनहसर होंगी? पहले तो ये हमने आंसर दे दिए कि हाँ ये हार्ट फेलियर है, इसकी इटियोलॉजी के क्लू हमें मिल रहे हैं और ये स्टेज सी है क्योंकि सिम्टम्स हैं। तो पहला स्टेप तो ये हो गया कि आपने असेसमेंट पे ये जवाब देना है, इज दिस हार्ट फेलियर और नॉट? इफ हार्ट फेलियर, व्हाट्स द इटियोलॉजी एंड व्हाट्स द स्टेज ऑफ योर पेशेंट। इसके बाद फिर अब मैनेजमेंट होगी, वो किस बुनियाद पे होगी ये देखें, मैं दूं वही चीजें, ये आपको रिवाइज करवा रहा हूं मैं। ये सारा कुछ देखना है कि हमारे पास बैंक में है क्या ऑफर करने के लिए, फिर हमें वो पता होना चाहिए कौन सी दवाई क्या करती है। अब मैं आपको बताता हूँ कि हार्ट रेट इज 70 पर मिनट, ठीक है, विद ब्लड प्रेशर ऑफ 100/70, क्रेटिनिन क्लियरेंस 50 ml पर मिनट एंड सीरम पोटेशियम 4.9। अब क्या क्या ऑफर करेंगे? बीटा ब्लॉकर्स। अभी हम सिर्फ हार्ट फेलियर की अब बात कर रहे हैं, वो तो हमने इस्केमिक की तो हो गई। हार्ट फेलियर की उन चारों में से क्या क्या देंगे? SGLT2, शी इज डायबिटिक, तो उसकी तो जगह बनानी ही बनानी है हमने। बाकी MRAs दे सकते हैं बिकॉज क्रिएटिनिन ठीक है थोड़ा कम है, पोटेशियम चूंकि 4.9 है, 5 या इससे अबव होता तो हम नहीं दे सकते थे। लेकिन फिर क्या करना होगा, देखिए पोटेशियम के हवाले से फर्दर मॉनिटरिंग, पोटेशियम हाई डाइट अगर लेती है तो उस पर, और अगर ज़रूरत पड़ी तो पोटेशियम बाइंडर्स देने पड़ेंगे। तो वो इतना आसान नहीं है किसी को स्पाइरोलेक्टोन दे देना कि अल्लाह हाफिज बस, और फिर वो 3 महीने बाद आपके पास आएगा, स्पेशली एट दिस वर्ज पोटेशियम। मैंने जानबूझ के रखा है, जो आप बड़े आराम से एल्डेक्टोन सबको चने की तरह बांटते हैं और फिर वो हाइपरकैलेमिया के साथ लाइफ थ्रेटनिंग एरिथमिया के साथ कहीं जाता है पेशेंट। सो वेरी इंपॉर्टेंट, जब आप पोटेशियम से खेल रहे हो तो देखें आपके पास है कितनी गुंजाइश। यहाँ बहुत कम गुंजाइश है पोटेशियम में, जरा सी गड़बड़ से हाइपरकैलेमिया हो जाएगा,
तो अब उसको सेव करने के लिए क्या क्या करना होगा, वो सारी चीजें करनी होगी और क्लोज मॉनिटरिंग करनी होगी पेशेंट की। सेकेंड केस, 70 years diabetic with severe shortness of breath for a long period, aggravated since 2 weeks with orthopnea and PND. बैकग्राउंड से है एसओबी, काफी रहती है, लेकिन 2 हफ्ते से शदीद हो गई है। ठीक है, तो व्हाट्स द वे फॉरवर्ड? वही सारा हमारा विद दैट ऑब्जेक्टिव, हार्ट फेलियर है या नहीं है तो इटियोलॉजी क्या है, एग्रीवेटर क्या है, और इसमें कुछ चीजें ये भी करनी होगी क्योंकि ये थोड़ा सा एक्यूट स्टेज में आया है। हिस्ट्री ऑफ एमआई 5 years बैक, नो रिकॉर्ड अवेलेबल, नॉन कंप्लाइंट टू ट्रीटमेंट, हार्ट रेट 130, irregular, ब्लड प्रेशर 90/70, नॉर्मल वेसिकुलर ब्रीदिंग विद इंस्पिरेटरी क्रेपिटेशन ऑल ओवर। ये एक्यूट प्रेजेंटेशन, ठीक है। अगला स्टेप ईसीजी होगा। क्या गाइड कर रही है ईसीजी? और इंटीरियर में क्यूब वेव्स। तो ईसीजी ने उस कहानी को वैलिडेट कर दिया कि ओल्ड इंटीरियर एमआई हुआ है, उसके साथ एलवी डिसफंक्शन तो था ही था, अब ये कुछ एएफ नया आया है जिसने इनका फर्दर डिटेरेशन कर दी है। सो यू गॉट ऑल द इंफॉर्मेशन हियर। तो इसका मतलब है कि हार्ट फेलियर है। इटियोलॉजी एंड एग्रीवेटिंग फैक्टर क्या थे? एक किनेटिक एंटीरोपोस्टीरियर एको ये हुआ, तो स्टेज सी विद एएफ विद फास्ट वेंट्रिकुलर रेट, इटियोलॉजी आईएसजी, एक्यूट एंड लॉन्ग टर्म मैनेजमेंट प्लान। अब कैसे प्लान करेंगे? वही चीज कि वो हमें बुनियादी बेसिक, जब ये स्टेबलाइज होंगे तो ये चीजें चाहिए। पेशेंट का हार्ट रेट क्या है, पेशेंट का ब्लड प्रेशर क्या है, पेशेंट को स्टेटस रीनल क्या है पेशेंट को, यहाँ तो एएफ भी है पेशेंट को, तो यहाँ थोड़ा सा डिफरेंट हो जाएगा। अब मैं आपको देता हूँ वो वेरिएबल्स, ये सिर्फ बार बार इसलिए दिखा रहा हूँ कि ये अप्लाई करना है मरीज पे। जब भी स्टेबलाइज होने के बाद अब रेडी टू डिस्चार्ज है, तो ये 4 चीजों के बगैर आप डिस्चार्ज, और इन 4 चीजों में क्या फिर देखना है कि आपके पास क्या क्या कुछ कितना है। अब हर आदमी इस डिफरेंट दौलत को डिफरेंट समझता है। बीपी कोई 110/70 को ये समझेगा कि मैं इस पे सब कुछ दे सकता हूं, कोई समझेगा नहीं मैं 1 दे सकता हूं, तो आप जस्टिफाई होंगे। हर इंसान अपनी दौलत डिफरेंट अंदाज से गेज करता है, लेकिन फिर फॉलोअप चाहिए लाजमी। जहां जहां भी आप थ्रेटनिंग थे उसका फॉलोअप लाजमी करना होगा कि कोई भी चीज आप उसके ऐसी दे रहे हैं जो उस आपके सरमाए को अफेक्ट करेगी, तो आपने क्लोज फॉलोअप करना होगा कि उसने कितना इफेक्ट किया। सो आफ्टर स्टेबलाइजेशन हिज हार्ट रेट इज 110 per minute with blood pressure 90/70, creatinine clearance 40 ml per minute and serum potassium 4.5। जी, एक बड़ा मिसकंसेप्शन आप लोगों के नजदीक होता है कि किसी का क्रेटिनिन थोड़ा सा बढ़ जाता है, आप ACRB बंद कर देते हैं, आरनी बंद कर देते हैं, हाइड्रोक्सीन नाइट्रेट पे शुरू कर देते हैं और पेशेंट की डायरेटिक बंद कर देते हैं। दिस इज वंस योर पेशेंट इज हाइपोवोलेमिक तो डायरेटिक आप ऑफ कर सकते हैं। पेशेंट के पोटेशियम बढ़े हुए हो तो आप ये कर सकते हैं, पोटेशियम अगर नॉर्मल है तो ये नहीं कर सकते। पता नहीं किस हकीम ने आपको बता दिया कि क्रेटिनिन थोड़ा सा बढ़ा हुआ है तो अब उसको ACRB देनी ही नहीं है। दिस इज मिसकंसेप्शन। ACRB is compelling indication during this situation, keeping in view the potassium. पोटेशियम का अगर आप ख्याल रख सकते हैं, पोटेशियम को नॉर्मल मेंटेन कर सकते हैं, दिस पेशेंट इज अ कैंडिडेट फॉर ACRB and ARNI rather than depriving this patient of these drugs. तो खुदा के लिए हमेशा जब भी क्रेटिनिन डिरेंज है तो किसको देखना है? उसकी बुनियाद पे फैसला करना है कि इसको देनी है या नहीं देनी है। अच्छा, इसमें करेंगे क्या? सॉरी, हाँ, बीटा ब्लॉकर ब्लड प्रेशर 90/70, तो बैंक में बहुत कम है मकदार, बहुत ही कम है सरमाया, बट आई विल ट्राई। अभी हमने लास्ट एक पेशेंट देखा था, हमने क्या कहा था? शॉर्ट एक्टिंग, लो डोज, एंड ट्राई टू कीप दिस पेशेंट इन हॉस्पिटल टू सी वेदर दिस पेशेंट इज टॉलरेटिंग, क्योंकि AF में जब आप रेट कम कर देते हैं तो प्रेशर अप हो जाएगा। तो ये बस देखना है कि ये पेशेंट परफ्यूज कर रहा है कि नहीं कर रहा है। लेकिन पहली ड्रग बीटा ब्लॉकर होगी, इससे पहले ना SGLT2 देंगे,
ना ACRB देंगे, कुछ नहीं देंगे। सो इसके बाद फैसला होगा फिर आगे क्या करना है। अच्छा, इसमें चूंकि पोटेशियम ठीक है, क्रेटिन थोड़ा सा कम है, तो SGLT2 प्रेशर्स पे ज्यादा इफेक्ट, तो दैट वुड बी द सेकंड वन। थर्ड वन MRA होगी पोटेशियम को देखते हुए। हाँ, बीटा ब्लॉकर के बाद मेरे पास प्रेशर्स बहुत अच्छे आ गए, तो माय थर्ड वन विल बी ACRB। तो ये दोनों फर्क सेम पेशेंट में डिसीजन डिफरेंट हो सकता है अगले दिन, कि मैं सोच रहा हूँ कि इसको MRA दूंगा, लेकिन अगले दिन प्रेशर 110 120 के आ गए, तो आई वोंट गिव MRA फर्स्ट, आई वुड फर्स्ट गिव। और जो कन्वेंशनल MRA है वो स्पाइनल करंट 12.5 से शुरू की जाती है, 25 से नहीं करते। तो जब भी आप किसी को रेस्ट ब्लॉकर के साथ स्पाइरोलेक्टोन देंगे तो 25 स्टार्ट, 25 ना करें बल्कि 12.5 करें, या अगर फ्रिसमाइड के कॉम्बिनेशन में है तो फिर चले 25 चल जाएगी, क्योंकि आप एक तरफ से कम भी कर रहे हैं, एक तरफ से। अच्छा, और एक मिसकंसेप्शन हम भी पहले करते थे कि पोटेशियम करने के लिए डायरेटिक देते रहो। डायरेटिक का फैसला यूवोल्यूमिया पे होगा बस। यूवोल्यूमिक है तो पोटेशियम के लिए डायरेटिक नहीं देनी है, फिर पोटेशियम बाइंडर पे जाएं या दूसरी स्ट्रेटजीज पे जाएं, क्योंकि उसमें आप पेशेंट को गैर जरूरी हाइपोवोलीमिया करके इलेक्ट्रोलाइट प्रॉब्लम्स और दूसरी चीजें करेंगे इन एडिशन टू पोटेशियम। तो वो गेम उसी वक्त खेलना है जब तक कि आपका पेशेंट हाइपोवोल्यूमिक रहता है, तब आप डायरेटिक से पोटेशियम को कवर कर सकते हैं। अगर वो यूवोल्यूमिक है, उसको जरूरत नहीं है डायरेटिक की, फ्रिसमाइड की, तो पोटेशियम को दूसरे तरीकों से काबू करना पड़ेगा। ये बस जल्दी से 2-3 केस हम और करते हैं, फिर क्वेश्चन आंसर्स आपके ले लेते हैं। 70 years man with 1 day history of breathlessness which has progressing through the day. बैकग्राउंड ये है एंजाइना यानी इस्केमिक हार्ट डिजीज का बैकग्राउंड है, 35% EF है, कुछ इसके सिम्टम बढ़ गए हैं इस बैकग्राउंड के साथ। ऑलरेडी एग्जिस्टिंग ट्रीटमेंट इंपॉर्टेंट है, क्योंकि ये ऐसे मरीज आपके पास आते हैं कि ये उसकी ट्रीटमेंट है, एस्पिरिन, एटोरवा, बिजोप्रोल, रेमिप्रिल, सबलिंगुअल। ठीक है, आपने पेशेंट को एग्जामिन किया, थोड़ा बहुत वॉल्यूम ओवरलोड लगा, ट्रीट किया फ्यूरोसमाइड से और इन तमाम चीज़ों से, अब ही इज़ रेडी टू डिस्चार्ज। नैरो कॉम्प्लेक्स QRS है, EF 27% आया है, ये इसकी ट्रीटमेंट थी, पोटेशियम इतना है और GFR इतना है। प्रेशर्स, लेट्स अज्यूम दैट हार्ट रेट इज अराउंड 80 एंड ब्लड प्रेशर इज 120/80। क्या करें? ये सारे ऑप्शंस अवेलेबल हैं। इंक्रीज डोज ऑफ एस, ऑलरेडी एस पे जी, स्विच एस टू आर्नी, इंक्रीज बीटा ब्लॉकर डोज, स्टार्ट MRA, स्टार्ट SGLT2 इनहिबिटर। ये हम यानी देखें, इसमें दोनों में से तो एक चूज करना पड़ेगा, दोनों तो कर नहीं सकते, क्योंकि ये एस देंगे तो आर्नी तो इन दोनों में से ऑप्शन ये है। बीटा ब्लॉकर रेट 80 के अराउंड बेसलाइन आया है, आप 70 चाहते हैं, तो अगर बढ़ाएंगे भी तो बड़ा आपके पास बैंक में बहुत थोड़ा सा सरमाया है, तो बहुत लो डोज विद मॉनिटरिंग अगर आप आइडियल चाहते हैं। मैं शायद 80 पे छोड़ दूं, पहले फॉलोअप पे देखूंगा कि क्या करूं, तो मैं बीटा ब्लॉकर नहीं बढ़ाऊंगा। बट आई कैन स्विच इफ आई थिंक कि बैंक में इसके पास, मरीज के पास भी पैसे हैं कि नहीं है। वो भी एक कैटेगरी थी ना बैंक की के कॉस्ट की, कि वो अगर पेशेंट में है तो आप स्विच टू आरनी, दैट वुड बी प्रेफरेबल रादर देन कीपिंग हिम ऑन एस बिकॉज ही गॉट सिम्टोमेटिक ऑन एस। फिर MRA ऐड करूंगा, लेकिन वही पोटेशियम आपने देखा 4.5 था, तो क्लोज मॉनिटरिंग के साथ। 3 होता तो मैं बड़ा 3.7 3.8 तो बड़ी खुशी से देता, अब थोड़ा परेशानी से दूंगा। SGLT2 ऐड होनी चाहिए जो इसमें नहीं थी। ठीक है, फिर 70 years old women presenting to the outpatient clinic, ये इसके बेस लाइन्स है। प्रेशर्स कम है अगर आप देखें। ठीक है, अब आपके वही चीजें देखनी है कि क्या है यहाँ पे। अगर हम देखें तो हमारे पास प्रॉब्लम क्या है, पेशेंट का प्रेशर कम है। अच्छा, ऑलरेडी सारी ड्रग्स पर है, क्या करेंगे? कंटिन्यू। परफ्यूजन देखनी है सिम्टम से, और सिम्टम्स क्या है? सिम्टम्स ऑफ हाइपोपरफ्यूजन। अगर वहां कोई गड़बड़ है तब किसी की दवा कम करनी है, वरना अगर कोई चारों दवाइयों पे और उसका प्रेशर 90 इवन 85 बट वार्म विदाउट एनी डिजीनेस, पोस्चरल हाइपोटेंशन, कंटिन्यू। लेकिन बस बैंक में प्रेशर अब
कम है, ख्याल रखना है आगे के लिए। तो इसमें क्या है, इनिशिएट फाउंडेशन थेरेपीज, क्लोज मॉनिटरिंग एंड कंसिडरेशन। प्रेशर किसी का कम होना मतलब आपके पास गुंजाइश बड़ी कम अब रह गई है, तो शायद फ्यूचर में आपको कोई एडिशनल, आज हम उस पर जा नहीं रहे, हम पहली चारों पे हैं, वो एक अलग फिर कहानी है कि कब किस तरह कौन सी ऑफर करनी है आफ्टर व्हेन यू आर एग्जॉस्टेड विद योर कन्वेंशनल और यू डोंट हैव लिबर्टी टू ऐड ऑन एनी अदर, तो फिर आपने किस तरह अगले स्टेप पे जाना है। लेकिन आज तो हम पहले स्टेप में ही इतनी गलतियां देखते हैं आपकी, लेकिन इस लेक्चर के बाद अगर हमें वो इम्प्रूवमेंट नजर नहीं आई तो फायदा नहीं होगा। स्टार्टिंग फ्रॉम असेसमेंट, डायग्नोसिस, मैनेजमेंट स्ट्रेटेजी एंड टेलरिंग योर मेडिकेशन, उसमें ये सब की सब अप्लाई होंगी बातें। इसका मतलब है हर मरीज को आपने बड़ा क्लोजली असेस करना है। यहां देखें आप, आपके पास बैंक में क्या चीज कम है, पोटेशियम बढ़ा हुआ है और क्रिएटिनिन क्लियरेंस कम है, ठीक है। तो यहां हमें प्रॉब्लम इन दो चीजों का है। इन पेशेंट एक्सपीरियंसिंग माइल्ड डिक्रीज इन किडनी फंक्शन और asymptomatic reduction of blood pressure during HF hospitalization, diuresis and other GTMT should not routinely be discontinued. यानी ये रूटीन नहीं होना चाहिए। किस बुनियाद पे फैसले होंगे, वॉल्यूम स्टेटस पे डायरेटिक का और क्रिएटिनिन की, पोटेशियम की बेस पे बाकी आपकी कन्वेंशनल मेडिकेशन आउट करने का। ये जो कल्चर है ना, जरा सा किडनी फंक्शन गड़बड़ है और बीपी थोड़ा सा कम है तो ये भी बंद कर दो, ये भी बंद कर दो, ये भी बंद कर दो, ये नहीं। इट्स ऑल डिपेंड ऑन योर असेसमेंट। असेसमेंट क्या कहती है, आपके पास लॉजिकल रीजन बनता है देन यू कैन, अदरवाइज जस्ट ऑन द बेसिस ऑफ डिरेंज किडनी फंक्शन यू कांट स्टॉप ACRB और ARNI और you can't stop diuretic. The patient may be at the borderline of GFR for RAS inhibition. However, we would like to persist with keeping this patient on the foundation medication. लेकिन क्या करना होगा, consider adjustment. Is this patient consuming a high potassium diet? Can this be modified? यानी वो तमाम चीजें जो पोटेशियम को बढ़ाने का बाइस बन सकती हैं उनको टेक केयर करना होगा और क्लोजली फॉलो अप। हाँ, अगर इनसे हाइपरकैलेमिया हो जाता है then you have to stop them. Conclusion. Multiple evidence-based guidelines have been updated and provide the most current recommendation regarding the management of patient with heart failure, and this is the only condition where you see so many upgradation in management strategy, especially medical treatment in last 5 to 10 years. क्यों? क्योंकि अब दुनिया भर में बच ही यही रहे। इस्केमिक हार्ट डिजीज कहाँ जाएगा, हार्ट फेलियर। हाइपरटेंशन कहाँ जाएगा, हार्ट। जब आप जितनी जिंदगियां बचा रहे हैं प्राइमरी PCI करके, वो सब अल्टीमेटली, तो ये इनकी पॉपुलेशन हर जगह बढ़ रही है और एज एक्सपेक्टेंसी बढ़ती जा रही है। आप रिदम्स को ट्रीट कर पा रहे हैं, हर चीज जो कार्डियक कंडीशन थी उसको आप ट्रीट कर पा रहे हैं, तो जिंदगी बढ़ रही है। जिंदगी बढ़ रही है तो ज्यादा से ज्यादा हार्ट फेलियर के पेशेंट्स अब मिलेंगे आपको। Foundation therapy for patient with HFrEF consists of ACE-ARB, ARNI, beta blocker, MRA, SGLT2. So these four should always be there in your heart failure management. लेकिन क्या है, there is a flexibility in the order of initiation of the drug therapies, and priority is to get the patient on low dose of all four classes therapy as soon as possible. ये important है कि जो भी उसमें आपको नजर आ रहे हैं उसके characteristics, कोशिश करें कि चारों की चारों इवन लो टू मॉडरेट डोज में पहले आ जाएं, फिर कौन सी बढ़ानी है कौन सी घटानी है अकॉर्डिंग टू द पेशेंट्स कोमॉर्बिडिटीज, और वही चार चीजें, हार्ट रेट, रिदम, ब्लड प्रेशर, पोटेशियम, क्रिएटिनिन। यानी ये तो आप अपनी एक जहन में डाल लें कि ये 5 चीजें हर हार्ट फेलियर के पेशेंट, चाहे वो पहली दफा डायग्नोज हुआ, चाहे वो फॉलो पे आ रहा है, चाहे उसके बाद फॉलो पे आ रहा है, और फिर आपका कंप्यूटर फौरन आपको बताए कि इसके मुताबिक आपके पास बैंक में क्या कुछ कितना है, उसके मुताबिक आप क्या दवा बढ़ा सकते हैं, क्या घटा सकते हैं, किसको आउट करना है, किसको इन करना है, आउट ऑफ दीज ऑल 4, एंड डायरेटिक स्टेटस अकॉर्डिंग टू द वॉल्यूम ऑफ पेशेंट। थैंक यू वेरी मच फॉर योर क्वेश्चन। कोई सवाल तो कोई भी हो तो हम अगले 4-5 मिनट में ले सकते हैं। ठीक है।